on the initial string. या स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? चलो, so from yesterday we have started unit number 3, right? We have started unit number 3. So we revise the things, we study sequence, right? मैं थोड़ा रिवाइज करवा देता हूँ आपको what we have done yesterday's lecture. So sequence is any map, ये बता देता हूँ, any map of the form, this form A, that is whose domain is n. इस तरह के मैप को हम सीक्वेंस कहेंगे, राइट? इज कॉल्ड सीक्वेंस. देखिए, नाउ ऑनवर्ड्स हम मैप यूज नहीं करेंगे, बट सीक्वेंस का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? बेसिकली सीक्वेंस इज ए मैपिंग फ्रॉम नेचुरल नंबर टू एनी सेट, राइट? एंड because of this mapping n to a, and since by definition of map, what is map means function, it is a correspondence in which each element of domain has a unique image. When we say each element of domain, means each here domain is natural number, so each natural number must have a image. So we suppose the image of a1 is this, 2 is a2, this is a3, this is a4. We can name the images, okay, and so on. And these range elements, mostly we write the sequence these elements, okay. So our sequence here is these ans, where n belongs to this. तो n belongs to n नेचुरल नंबर का डोमेन आ गया और an इसका इमेज आ गया. तो बेसिकली नाउ ऑनवर्ड्स वी राइट द सीक्वेंस इन दिस वे, राइट? वो जो सीक्वेंस आने का रीजन और लॉजिक क्या है? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ मैपिंग, राइट? देन वी ओके, तो ये सीक्वेंस आ गया. देन वी डिस्कस इज बाउंडेड. मैं सीधे अपर बाउंड लोअर बाउंड छोड़ता हूं. आई कम टू द बाउंडेड सीक्वेंस, ओके. देन वी स्टडीड bounded sequence. So we say a sequence, say an, right, is called bounded sequence if it has lower bound as well as upper bound, है ना? That is, there exist, say, real numbers. There exist real numbers, say L and K, such that the sequence is satisfying the inequality, right? And here this L is
lower bound, and this k is upper bound. So this kind of sequence is bounded sequence. Right, students? Any question? Okay. Okay. So then we can have examples of bounded sequence. For examples, you can take हमने कल कुछ एग्जांपल्स करी हुई थी. The simplest example we take as a question, show that sequence 1 upon n. हम sequence को बच्चा ऐसे लिखेंगे. Now here 1 upon n, we know that here n is always natural number, right? Is bounded sequence. Is bounded sequence. Okay. Solution, you can write the sequence 1 by n is just a set starting from one natural number 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, so on. And you know that in previous examples we have studied as n tends to infinity, 1 by n tends to 0. Okay. So अब आपसे इसी सेट से बता सकते हो कि इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड क्या है. ठीक है, यू कैन शो इट. बता सकते हो ना. तो here we can say that this is less than equal to this, right? Yeah, मैं ऐसे बोल सकता हूँ it is n less than equal to n where your a and is 1 upon n. ठीक है, चलो. Right, this is the simplest example. Other way of proof is also there. जैसे your n is always greater than equal to 1, so this implies 1 by n is less than equal to 1. ऐसे ही प्रूव कर सकते हैं. n is positive number, so 1 by n is also a positive number. नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव नंबर. ठीक है. सो इस तरीके से भी आप जनरलाइज करके भी प्रूफ कर सकते हैं. ये सब हमने कल भी डिस्कस करा था, हमने इसको रिवाइज भी कर लिया. नाउ वी टेक more examples on these bounded sequence because they are important. So we write as a question, show that नहीं ऐसे नहीं करेंगे. Prove that following sequences are bounded or not. क्या ये bounded है या नहीं. Right? We take first sequence. The first sequence we take n upon n plus 1. Right? n upon n plus 1. This is our sequence.
राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, n अपॉन n प्लस 1। हमने शायद कल ही मैंने एग्जांपल बताई थी। हम दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आप इसके एलिमेंट्स लिख लीजिए, उनको एनालाइज कर लीजिए। तो दिस सीक्वेंस इज बेसिकली, पहला एलिमेंट क्या होगा इसका, व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस सीक्वेंस, 1 1 by 2, then 2.3, 3.4, 4.5, so on, राइट। और ये कहां तक जाएगा, लास्ट एलिमेंट क्या होगा इसका, उसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक n टेंड्स टू इंफिनिटी, तो इसका लिमिट निकाल लेते हैं, है ना, ऐसे करते थे, n अपॉन n प्लस 1, एंड यू कैन फाइंड दिस लिमिट। तो यू टेक n और n कॉमन ले लीजिए, 1 अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे स्पेस कम है, राइट। तो आप क्या करिए, आप इसको स्पेस को बढ़ा लीजिए, एंड यू राइट इट एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, यहाँ पे n है, यहाँ पे n को कॉमन ले लीजिए, इंफिनिटी की लिमिट्स निकालना आपको आता होगा, दिस एंड दिस कैंसिल आउट, जब इंफिनिटी का वैल्यू लगाएंगे, दिस इज 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो 1 अपॉन 0 इज 1। तो एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इट इज मूविंग टूवर्ड्स 1। ठीक है चलो, राइट। सो और दूसरा आप जहां से भी इसका बिहेवियर देख सकते हो, इट इज 0.5, it is 0.6, it is 0.7 something, so it is slowly increasing, but in rate of increase बहुत स्लो हो जाएगा जैसे जैसे आगे जाएंगे, 1 को क्रॉस नहीं करेगा। देखो 1.7 तो तीसरे स्टेप पे आ गया, अभी इन्फिनिटी तक इसने 1 को क्रॉस ही नहीं करना है, तो यू कैन इमेजिन कि कैसा सीक्वेंस होगा, राइट। सो वी कैन से here, we can say that this sequence is बाउंड्री तो है, पर अपर बाउंड और लोअर बाउंड देखना है हमने जहां पे, राइट। सो अपर बाउंड इसका आ जाएगा, वी कैन से दैट द सीक्वेंस हियर दीज एलिमेंट्स, देखो 1/2 से नीचे वाला लोअर बाउंड होगा और 1 से ऊपर वाला अपर बाउंड होगा, राइट। सो उस सेंस में हम 0 इसका ले सकते हैं लोअर बाउंड, वी कैन से इट इज लेस देन इक्वल टू an and less than equal to 1, where और an क्या है, an is the sequence, इसका वैल्यू इनके बीच में ही आएगा, एंड दिस इज फॉर ऑल n, कैन आई राइट दिस स्टूडेंट्स, ठीक है। ओके, तो इनका जो वैल्यू होगा वो इन दोनों के बीच में, राइट। अदर वे ऑफ प्रूफ, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, आप इसको जनरलाइज वे में भी कर सकते हो। सो अदर वे क्या है, हियर an is n upon n plus 1, ठीक है, राइट, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बोल सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 0, मैं ग्रेटर देन ही 0 आएगा, विच इज ग्रेटर देन, बोल सकता हूँ, बिकॉज नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, मिनिमम एलिमेंट इज 1/2, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेंगे ना, नेगेटिव तो नहीं होगे ना, नेचुरल नंबर नेगेटिव होते नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू दिस, सभी नेचुरल नंबर के लिए ये नंबर तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, ग्रेटर देन 0, एग्रीड। बिकॉज इट इज पॉजिटिव, नंबर लाइन के राइट साइड पे आएगा हमेशा, क्योंकि नेगेटिव नंबर आएंगे नहीं। आल्सो I can write
an which is equal to n upon n plus 1, I can write it 1 minus n plus 1. देखिए लिख सकता हूं, जब सिंपल इसको डिवाइड करके निकाल सकते हो वैल्यू 1 माइनस 1 बाय n लिख सकता हूं ऐसे, n प्लस 1 लिखेंगे माइनस हो जाएगा, ठीक है। आई कैन राइट दिस वे। तो 1 माइनस समथिंग, 1 माइनस समथिंग is always less than 1 or all n belonging to n, नहीं। देखो जो नंबर है 1 1 1 n प्लस 1 ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो 1 में से कुछ माइनस करें तो वो नंबर 1 से छोटा ही रहेगा ना, 0, ठीक है, राइट। अब लेस देन इक्वल टू लिख सकते हो, यू कैन राइट ग्रेटर देन इक्वल टू, नो इशू, ठीक है, राइट। So therefore G1, this is second, so from first and second we can say an is between this value, right? So this implies a given sequence which is n upon n plus 1, okay, is bounded. तो देखिए हमने दोनों तरीके से प्रूव कर दिए, जनरलाइज वे में प्रूव कर सकते हैं एन को लेके और उनके एलिमेंट सेट्स को लेके भी, क्योंकि कई बार आप सेट को ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे चीजों को कि इसका बिहेवियर, ये भी स्मूथ एग्जांपल्स हैं, आगे जाके आप कहीं पर इन चीजों को हो सकता आइडेंटिफाई ना कर पाओ, देन यू नीड हेल्प, तब आपको जनरलाइज। हाँ जी बच्चा। हम बच्चा 1/2 भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। देखो लोअर बाउंड क्या होता है, 1/2, जब 1/2 से छोटे जितने भी नंबर होंगे सारे लोअर बाउंड होंगे, ये हमने सेट थ्योरी में पढ़ा हुआ है ना। हाँ आप 1/2 लिख सकते हो, नो इश्यू। हाँ बिल्कुल, ये तो आपको हमने पहले डिस्कस करा हुआ, हमने पहले सेट थ्योरी में पहले नहीं पढ़ा था हमने वो अपर बाउंड सेट्स का। तो लोअर बाउंड क्या होता है, सबसे छोटा या उससे सेट के बाहर भी लोअर बाउंड हो सकता है, नो इश्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट नंबर 2, वी टेक द सीक्वेंस। मैं सीक्वेंस कैसे लिखूंगा, where your a n is, I write 2n minus 5, 2n plus 1, ठीक है। So slowly we are moving towards सब क्वेश्चंस, राइट। जी आ गया। अब आपने इनका वैल्यूज हमें फाइंड करना है। तो पहले आप इनके आइडेंटिफाई एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कैसे होंगे, ठीक है। तो हेयर a1 क्या होगा, n को 1 करेंगे तो -3 अपॉन क्या आएगा, क्या आएगा, -3 अपॉन 3 इज -1। a2 क्या आएगा, -1 अपॉन 5। a3 क्या आएगा, 7। a4 क्या आएगा, 1 अपॉन 3।
तो मीन्स देखो नेगेटिव नंबर पहले दो आए, आगे सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, इसका एक बिहेवियर तो हमें क्लियर हो गया है ना। ठीक है, क्योंकि देखो नेगेटिव नंबर आना था जब 5 से 5 बड़ा था, 5 बड़ा सिर्फ दो नंबर के लिए था, उसके आप n3 4 जितना लोगे नंबर सारे क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ये चीज क्लियर हो गई बच्चा लोग। ठीक है, लोअर बाउंड हमें पता है इसका -1 होगा जब -1 के बाद होगा, है ना। तो वी कैन से दैट, so therefore I can say that an is greater than equal to -1 for all n। लोअर बाउंड तो मिल गया मुझे। ठीक है, एग्री स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ वी नीड अपर बाउंड। अब अपर बाउंड के लिए देखो, अब इसका बिहेवियर हो सकता है अलग अलग तरह का, जैसे 1/7 आया, फिर 1/3 आया, आगे आए, तो जहां पे हमें प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अब इसको स्मूथ वे में देख सकते हैं। अगर आप इसका वैल्यू आप एक तो हम अपने यूजुअल वे में भी देख सकते हैं। कैसे? यूजुअल वे में हम देख सकते हैं n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका लिमिट आएगा 2.2 दैट इज 1। एज n टेंड्स टू इंफिनिटी इसका वैल्यू 1 आएगा, तो मैं अपर बाउंड भी इसका 1 आएगा। बट आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आल्सो से आल्सो आई कैन राइट an as 2n-5 2n plus 1। ठीक है, आई कैन राइट इट एज 1-6/2n+1। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर आप तो मिनटों में लिख रहे हो, आपके पास हो सकता है नोट्स हो, है ना, हम कैसे लिखेंगे, हमें कैसे पता चलेगा ये लिखना है हमने, ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ना। हमें चलो कुछ नहीं है, ये डिवाइड करके आएगा, सिंपल। ये देखिए, +1 भी कर सकते हो, अगर आपको नहीं कुछ भी नहीं सूझ रहा तो जस्ट 2n-5 लिखिए, 2n+1 से डिवाइड कर दीजिए। देखो आपको मेथड सीखने हैं, आपको मेथड्स आएंगे, आप खुद कर लोगे। हमारा यही 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 2n+1, यही आ गया बच्चा लोग। सब्सट्रैक्ट करिए, ये कट गया, ये आ गया -6। ठीक है, नाउ 2n-5 कैन बी रिटन एज 2n+1, है ना, माइनस, नीचे डिवाइड किससे कर रहे हैं, 2n प्लस, तो सभी को डिवाइड कर देंगे, राइट। सो इट इज 1-6 आपको मेथड्स आने चाहिए, कैसे आ रहा है, ये तो हो रहा है, कहीं पर नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट इज वेरी सिंपल, बी वेरी सिंपल। ठीक है, तो आप डिवाइड कर लीजिए। देखो एग्जाम क्वालिफाई करना नहीं होना चाहिए आपका, आपका अप्रोच नॉलेज सीकर होना चाहिए, ताकि आपको चीजें समझ आए, हाउ थिंग्स आर हैपनिंग। ठीक है, तो देयरफॉर जो आपका रफ आ गया अंडरस्टैंडिंग के लिए, कैसे आया, an is 1-6/2n+1, तो ये इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू दिस, नहीं। सो देयरफॉर your an is less than equal to 1, all n belonging to this. This is number 2 and this is number 1। ये ग्रेटर देन है वो लेस देन है, इनको कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, so therefore from first and second we can say an is between -1 and +1। ठीक है, so this implies the sequence an is bounded, right। ठीक है स्टूडेंट्स, so next example is example number 3।
take the sequence it is a very strange sequence. The sequence is this, where a n is 1 plus 5, 5 square, so on, 5n. This is your an. ठीक है, ये आपका एंड एक एक एलिमेंट है सीक्वेंस का। तो देखो a1 क्या होगा, यहाँ से आप एनालाइज कर सकते हो। व्हाट इज a1? a1 मींस n का वैल्यू 1 आ जाएगा। देखिए जहां पे है, ये देखिए n, ये दिख रहा है n, राइट? a1 मींस n की 5 की पावर 1, मतलब 1/5 आएगा सिर्फ। फर्स्ट एलिमेंट बेसिकली 1 रखा है हमने, तो 1 प्लस 1/5, 1 प्लस 1/5 स्क्वायर, सो ऑन। अब देखिए ये क्वेश्चन ना थोड़ा थोड़ा अलग तरह का आ गया है ना। तो जहां पे, और दूसरा आपको जहां पे दिख रहा है कि ये आपका एक ज्योमेट्रिक सीरीज की तरह बना हुआ है ना। Here the an is geometric series, so you can find its value, and you know that its formula is a minus 1 r minus and 1 minus r. This is a first term, ऐसा ही होता है ना। तो it is equal to 1, a first term is 1, r is 1/5 power n upon 1 minus r, like this। ठीक है, right students? Okay, so what is value? I have to find the value, so I can write it as, just a minute, yeah, so this is equal to 1 minus 1/5 की पावर n, और ये बन जाएगा आपका 4/5, and this is equal to 5/4 into 1 minus, right? ठीक है, right? So now it is little simplified। ये सीक्वेंस का एक एलिमेंट है। अब देखिए 5 की पावर n का बिहेवियर तो हमें मालूम है। देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, 1 minus 5 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 5, है ना, नंबर एक। नंबर दो, ये सारी सीक्वेंसेस क्या हैं, पॉजिटिव है। पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू जहां है नहीं, तो जीरो कैन बी द लोअर बाउंड वेरी इजीली, है ना। सो आई कैन से दिस इंप्लाइज, I can say this an is less than equal to 5/4 all n, बोल सकता हूँ, क्योंकि जो ब्रैकेट में नंबर है दिस इज लेस देन 1, 1 माइनस समथिंग है ना, समथिंग इज पॉजिटिव नंबर, है ना। तो डी लेस देन इक्वल टू 5/4 also an is greater than equal to 0 for all n, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर हैं। नहीं, देखो बच्चा, ये है an, इसी जो है an, ये आर आर पॉजिटिव नंबर्स, तो ये नंबर तो पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 रहेंगे ना सारे। मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव का बीच में हिसाब ना हो तो देन इट इज सिंपल। ओके, so therefore it is between 0 and 5/4 all, and the upper bound lower bound मिल गया। So this implies the sequence an is bounded sequence। ठीक है,
deep boundaries. I think I give you some exercises for you people here. हाँ जी बच्चा, किसकी? क्यों? उससे कोई फर्क नहीं, तब भी यही आएगा। हाँ, एक वैल्यू इसका ज्यादा है ना, वहाँ 1 से जहाँ से शुरू होगा 1। चलो आप n+1 लिख दो, नो इशू, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट रिप्लेस n बाय n+1। ठीक है, सीक्वेंस में बाकी जो ये बिहेवियर होता है ना सीक्वेंस का, जहाँ इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं, आगे जाके आप पढ़ोगे कि इनमें कोई टर्म एक छूट जाए या आप छोड़ दो, उससे इसके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आता, बट वो आप आगे पढ़ोगे अभी। ठीक है, तो एक्सरसाइज फॉर यू पीपल नंबर 1, check boundedness of sequences. Okay, first one you write down this sequence, second sequence, tn square plus 4 y7 square plus 5, right? Then last one you write down ठीक है, इनका देखो आप लोग। Any question, students? Any question? बेटा कुछ पूछना आप लोगों ने? Okay, then we complete your today's class, and first of all I stop the recording and then sharing is stopped also. Okay, ठीक है। आज हम लोगों ने आपको एक और बात बतानी है, हमने हमने आज आपका एक स्पेशल सेशन रखा है, कल आपका एक वर्कशॉप शुरू हो रहा है आप लोगों का। ठीक है स्टूडेंट्स, आपका वर्कशॉप शुरू हो रहा है, और उस वर्कशॉप में आप सबको पार्टिसिपेट, आपने सॉफ्टवेयर डाउनलोड अपलोड कर दिए सारे जो चाहिए थे, डाउनलोड वो इंस्टॉल कर दिए अपने लैपटॉप और मोबाइल पे सभी ने? किसी को कोई इश्यू है वो सपना मैडम को कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, मैंने और आज हमने एक जॉइंट सेशन रखा है जिसमें हम लोगों ने आपको थोड़ा उसके बारे में बताना है कि हाउ वी कैन डू द थिंग्स। ठीक है, राइट? तो हम अभी नोटिस डाल देंगे। ठीक है, नोटिस डाल देंगे आप लोगों के लिए।
ठीक है। हम्म, ठीक। ये कोई हम रखेंगे 2-3 बजे बच्चा। ठीक है, आफ्टर लंच ब्रेक के बाद ही रखेंगे हम, शाम के। ठीक है, तो उसमें डिस्कस करेंगे चीजों को। ठीक है। हेलो।